I welcome Principal Madam Dr. Neena Roy Chaudhary. I also welcome Chitra Madam, who has today itself taken over as responsibility of Junior College Vice Principal. So congratulations and welcome to the meeting, Chitra Madam. Sudhir sir was also there some time back. I'm not sure if he's still continuing. And any other faculties who have joined. And of course, my dear students, I'm sure there is a super excitement as far as the results are concerned. The dates are yet to be announced for your 12th standard results, but all of you would have done your best, and you can hope for the best when it comes to the results. Very soon, perhaps the government will announce the dates, the board will announce the dates, and thereafter, your process of admission, choice of courses, etc., all that process will be rolled out. So I'm sure you will have lots of questions as to what I should do after 12th standard, what kind of courses are available in-house, what kind of subjects are available, what is this NEP, as we call it, New Education Policy 2020, which is introduced by the government. I'm sure a lot many questions will be there in mind. So the whole idea of having today's session is to share with you few of these things and then possibly understand what kind of queries, questions you have, and we'll try to address those questions to the extent possible. Okay, that's the whole idea of today's meeting. Before we begin, may I request Principal Dr. Neena Madam to say a few words, and then I'll start with the presentation. Thank you, Prasanna. I'm audible, I hope. Yes, ma'am. At the outset, I welcome all the students, the batch of 24 20 23 22 23 that will be passing no 23 24 12th standard batch of 23 24 that will be passing out, and I'm sure all of you are eagerly looking forward to your college life, joining college, our college of course, and any other college that you are looking at, whichever college you are aiming for. All will be implementing NEP 2020 from this year. We have already implemented it last year. So in that sense, we are 1 year ahead, being an autonomous college. Many of you may be aware of the BCom course and the other courses. All the courses, whether it's BCom or the other courses, are all will be under NEP 2020. The BCom course is the largest course. It is the oldest course. And with the BCom degree, you can do many things also. And sir will also explain that to you. As 12th standard students, you have also the privilege of the first preference as far as admission is concerned, because we have an in-house quota, and the doors are open to all the 12th standard students who are successfully passing out of the junior college from our college. So there are many questions, I'm sure, in your mind anyway about college and college life. But now we have to also understand some of the different aspects of NEP 2020. How do we select the course? When we are in BCom, what are the subjects that are being offered? How are they going to help us? What are electives? How will all the subjects in the curriculum, how will they help us, help to define our future career and professions? All these things, I'm sure, are some of the questions that are foremost in your mind. I congratulate Chitra Madam on taking over as Vice Principal and for arranging today's meeting. Madam will also be available to all of you for any questions. Tambi sir has prepared a very, very good PPT which summarizes, gives you in brief the most what are frequently asked questions and the answers to that. Sir will also be available, and I'm also available in college throughout the vacation. If you wish to come with your parents and you want you have any questions and queries and clarifications, we can do it both online as well as offline. So please feel free to ask questions after today's session or even thereafter, but please try to understand. Okay, this is definitely prepared so that you are in a better position to make a choice, and you are in a better position to know what you are going in for and how NEP 2020 will impact you as a student. Prasanna Tambi sir, I think you can take over from now. Thank you. Thank you, Neena Madam. So I'll begin with the initial discussion on NEP. Friends, if you are aware, if you have seen in newspapers or otherwise, 23-24 is the first year when national education policy was rolled out across the country.
and it started with the degree college first and MCOM first year. That's how they started it. And among all universities, etc., most of the universities, they are going to follow it from coming year, that is 24-25, whereas only autonomous colleges like us, we are one autonomous college, we have been following this NEP from 23-24. So whatever students have been admitted in 23-24 for FY BCom, that is our first batch of NEP. They will now move to second year, and you will seek the admission to the first year of NEP. So let us understand what is this NEP, what are the different categories of subjects, etc. Before that, just a few pointers about our SIES college. Many of you would know this. Perhaps in some cases, the parents would have studied in our college, or elder siblings would have, or cousins, etc., would have studied in our college. Our college was established in May 1999. We are currently accredited with A grade by NAC, which is a national level accreditation done by UGC. We received autonomous status in July 2020 by UGC. Now, when we became autonomous college, it means that we can draft our own syllabus, we can frame our own syllabus, we can have a different syllabus than Mumbai University, that is our parent university, and we can also choose to have our examination pattern. So as you can see further, when we look at the syllabus, when we look at the examination pattern, it will be slightly different from the pattern which is currently followed by Mumbai University. But having said this, next year, all other colleges of Mumbai University will also follow NEP. So most likely the pattern will be more comparable than in the present form. Our college is known for discipline as well as academic excellence. So we already have few ranks at university as well as at board level in the earlier year examination. So with this brief introduction about SIES, let me move on to the key highlights of this new education policy. The new education policy specifically looks at the curriculum and pedagogy. Curriculum is basically what industry is expecting, what is contemporary. That's how we should frame the curriculum. And pedagogy is basically the way of teaching. How do we teach? How do we deliver to the students? So NEP expects a lot of innovative ideas in both framing syllabus as well as pedagogy. And now I would say that we are 1 year experienced as far as these new things are concerned, because we already rolled out NEP in last year. There is a bit of flexibility for undergraduate education under NEP. To tell you a couple of examples, आप अलग-अलग alternative subjects के combination select कर सकते हो. So ये जो advantage है वो आपको NEP में मिल जाएगा. Your syllabus is integrated in a sense. अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट भी हो, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी और अलग से सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, और ये केयर आपको एनईपी में लिया है. So it is an integrated curriculum which will have some multidisciplinary subjects, other disciplines से subject आ जाएंगे, so that you are having a holistic education. There is an emphasis on research. As a student, you should be able to question a few things, ask questions, collect data, and then summarize that in the form of a report. So that kind of basic research orientation is covered in NEP. फिर आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट होते रहेगा. अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको साल में एक ही बार एग्जाम देना पड़ता था. एंड ऑफ द ईयर आपने एक एग्जाम दिया. लेकिन एनईपी में ऐसा नहीं है. आपका मिड टर्म टेस्ट रहेगा, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन रहेगा, और आपका सेमिस्टर पैटर्न भी रहेगा. जैसे हम आगे की स्लाइड्स देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस असेसमेंट में हमारा प्रोसेस कैसा है. Then NEP looks at holistic development. In a sense, we are not looking at only academic excellence. There should be a proper connect with society. There should be a proper connect with languages. There should be a proper connect with your physical and mental health. So all those things are taken care of under National Education Policy. As I told you, promotion of Indian languages is also part of this holistic development. So you may have to study couple of Indian languages again, but the perspective is different. As we discuss it further, I'll tell you कि exactly आप language में क्या करने वाले हो. Technology integration. आपकी जो जनरेशन है ये बहुत टेक savvy है. हमारी जनरेशन तो पहले हमने तो बहुत सारा इनोवेटिव अप्रोचेस देखा है.
मोबाइल के पहले लैंडलाइंस थे, बाद में मोबाइल आ गए, लैपटॉप्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, ऑनलाइन एजुकेशन आ गए. वी हैव सीन ऑल दैट प्रोसेस. Whereas your generation was born when all this technical support was available, so you are much ahead as compared to us in terms of technology. So ये जो टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल फिनटेक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल लिटरेसी है, जो आपके काम में आपको मदद कर सकता है. सो इसका एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेशन किया जाए, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एनईपी. और कोई भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है जब तक आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप नहीं मिलती है. सो एनईपी में ये भी कवरेज है कि आपको थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जिसके वजह से आपको जो बुक्स में जो नॉलेज मिल रहा है, जो क्लासरूम में नॉलेज आपको मिल रहा है, वो आप अप्लाई कैसे करते हैं प्रैक्टिस में, ये आपको समझ में आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दी highlights of NEP which you are going to experience in next 3 years. Then I'll take you through few terms about NEP because these are specific terms. So मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या है. जैसे मैंने आपको बोला, आपका अभी सेमेस्टर एग्जाम रहेगा. एक आपका सेमेस्टर 90 वर्किंग डेज का होता है. ओके, सो सेमेस्टर 1 will be 90 working days, which is about 15 weeks or little less than 4 months. And second semester will also be 15 weeks और 90 days. आपका सेमेस्टर के बीच में एग्जाम एक रहेगा, सेमेस्टर एंड में एग्जाम रहेगा. ऐसे आपको अगले 3 या 4 साल करना पड़ेगा. ओके, जो सेमेस्टर 1 है, पहला सेमेस्टर साल का, उसे हम ऑड सेमेस्टर कहते हैं, और जो सेकंड सेमेस्टर है उसे हम इवन सेमेस्टर करते हैं. लाइक फर्स्ट ईयर में आपका सेम 1 सेम 2 रहेगा, सेकंड ईयर में सेम 3 सेम 4 रहेगा, थर्ड ईयर में सेम 5 सेम 6 रहेगा, एंड सो ऑन. So this is a concept of semester that we'll get used to now. फिर आपके एनईपी में आपका एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा. मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट मतलब जिसमें आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी. जैसे कि आपको अकाउंट्स में डिग्री लेनी है, या मैनेजमेंट में लेनी है, या इकोनॉमिक्स में लेनी है, या स्टैटिस्टिक्स में लेनी है, या और कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको डिग्री लेनी है. सो वो आपका मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट करके उसको एनईपी में टैग किया जाता है. फिर इसके साथ आपका एक माइनर सब्जेक्ट का भी सेट रहेगा. ये जो माइनर सब्जेक्ट्स है, ये आपको आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, वो जो डिसिप्लिन है, उसके बारे में आपको और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दे पाएगा. जैसे कि अगर आप बीकॉम करने वाले हो, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी क्या होता है ये मालूम होना चाहिए. आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स मालूम होने चाहिए. आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या साइकोलॉजी भी मालूम होनी चाहिए. सो ये जो सब्जेक्ट्स है, इसे हम माइनर सब्जेक्ट्स कहते हैं. फिर इसके बाद आपको इलेक्टिव्स रहेंगे. इलेक्टिव मतलब इसमें आप 2 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो. और ये जो सिलेक्शन वाला सब्जेक्ट है, ये कोई और डिसिप्लिन से आएगा. अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए मैथ्स और स्टैट का जो सब्जेक्ट है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, वो इलेक्टिव्स में आ जाएगा, क्योंकि वो अलग डिसिप्लिन से है. फिर और एक सब्जेक्ट रहेगा वोकेशनल स्किल एनहांसमेंट कोर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनईपी एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. आपको अगर जॉब में जाना है, तो उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, वो डेवलप करने के लिए जो भी लगेगा, उसके जो सब्जेक्ट रहेंगे, उसे हम वोकेशनल स्किल एनहांसमेंट कोर्स या सब्जेक्ट्स कहते हैं. फिर स्किल एनहांसमेंट, आपको अगर कहीं पे भी एम्प्लॉय करके जाना है, तो आपको कोई बेसिक स्किल्स लगते हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल्स है, अलग लैंग्वेज में बात करना है, या और कुछ है. सो इसके लिए स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी आपके सिलेबस में रहेंगे. वैल्यू एजुकेशन, we cannot forget our basic values, and in order to ensure that the students are enriched with these basic values which have been following traditionally, आपको एक सब्जेक्ट रहेगा वैल्यू एजुकेशन कोर्स का. जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारे सिलेबस में वैल्यू एजुकेशन कोर्स है. फिर एक नया सब्जेक्ट एनईपी में इंट्रोड्यूस किया है, जो अभी सब कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट हो रहा है. उसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम. बेसिकली आईकेएस या इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? इट इज आवर कनेक्ट, इट इज आवर गाइड टू आवर हिस्ट्री विच इज वेरी रिच, आवर कल्चर and our Indian philosophy which is equally rich. So we want you to get connected with our history, culture and Indian philosophy, and that's why all the colleges have brought in that subject which is known as Indian knowledge system.
Then you will have some co-curricular courses. For example, आपके सिलेबस में एक हेल्थ एंड वेलनेस करके छोटा सा सब्जेक्ट है जो को-करिकुलर कोर्सेज में आता है, जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट में आपको ये सब्जेक्ट हेल्प करेगा। फिर है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। नाउ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज आर बेसिकली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिलेटेड सब्जेक्ट। आप कहीं भी काम करें, प्राइवेट सेक्टर में करें, गवर्नमेंट सेक्टर में करें, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूरी है। आपको कम्युनिकेशन कैसे करते हैं कोई भी लैंग्वेज में, उसमें करस्पॉन्डेंस कैसे होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो इसके लिए ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है, इसके लिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज और सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में रहेंगे एनईपी में। फिर आप में आपका फील्ड प्रोजेक्ट रहेगा। सो आपको कॉलेज से बाहर निकालना है, कुछ थोड़ा सर्वे करना है या और कुछ आपको दिया जाएगा, वो एक्टिविटी करना है, असाइनमेंट करना है, और ये फील्ड प्रोजेक्ट आपके सिलेबस में ही रहेगा। फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम रहेगा जिसमें आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर पाओगे और उसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर आपके एनईपी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी है, जैसे कि इंटर्नशिप्स है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ये आपको आपका एजुकेशन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में, प्रैक्टिकल ऑफिसेस में कैसे यूज होता है, कैसे अप्लाई करता है, कैसे अप्लाई होता है, ये आपको समझने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग या इंटर्नशिप्स भी रहेंगे। नाउ इन दिस एनईपी हमारा इवैल्यूएशन पैटर्न या एग्जाम सिस्टम कैसे रहेगा? सी, इन एनईपी एवरी सब्जेक्ट कम्स विद द क्रेडिट। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आइदर 2 क्रेडिट रहेंगे या 3 क्रेडिट रहेंगे या 4 क्रेडिट रहेंगे। अब ये क्रेडिट का मतलब क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है, इसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट में आप जिस सेमेस्टर में पास हो जाते हैं, उसमें आपको 2 क्रेडिट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और अगर 2 क्रेडिट्स का पेपर है, 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, सो हर एक वीक में वो सब्जेक्ट के लिए आपको 2 क्लॉक आवर्स के लेक्चर्स रहेंगे। अगर सब्जेक्ट 3 क्रेडिट्स का है या 4 क्रेडिट्स का है, सो आपके वीकली लेक्चर्स अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे। अगर 3 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है, देन यू विल हैव 3 लेक्चर्स पर वीक फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इफ यू हैव 4 क्रेडिट्स, तो आपके 4 आवरली लेक्चर, 4 क्लॉक आवर के लेक्चर्स वो पर्टिकुलर वीक में आपको रहेंगे। और जब वो सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट पास हो जाएंगे, सो आपके पॉकेट में 3 या 4 क्रेडिट आ जाएंगे। अभी इसमें एग्जाम सिस्टम कैसा है? जो हमारा 100 मार्क्स होता है, उसमें 40 मार्क्स का इंटरनल इवैल्यूएशन रहेगा। सॉरी। और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 60 मार्क्स। ये कौन से सब्जेक्ट्स के लिए? जिसमें 3 या 4 क्रेडिट्स है, उसके लिए ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। इंटरनल इवैल्यूएशन में 2 तरह से इवैल्यूएशन होता है। एक आपका 20 मार्क का इंटरनल टेस्ट हो सकता है, और दूसरे 20 मार्क के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, ओपन बुक टेस्ट हो सकता है, प्रेजेंटेशन होगा, वाइवा रहेगी। सो ये सब ऑप्शंस उसमें हम लोग यूज कर पाएंगे। ये आपके बेनिफिट के लिए ही एनईपी में ये सिस्टम लाया गया है। सो ये हो गया 3 या 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट का। अगर 2 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है, तो उसका 50 मार्क का एग्जाम रहेगा फॉर द सेमेस्टर। 3 या 4 क्रेडिट वाला जो सब्जेक्ट है, उसका 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, जिसमें 40 इंटरनल और 60 एक्सटर्नल मार्क्स रहेंगे। अगर 2 क्रेडिट का पेपर है, तो उसमें 50 मार्क्स का आपको सेमेस्टर का एग्जाम रहेगा, उसमें 20 मार्क का इंटरनल इवैल्यूएशन रहेगा, और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन आपका 30 मार्क का हो जाएगा। ये सब एनईपी में ही दिया हुआ है, और सब कॉलेज अभी यही पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स से पेपर होते थे, लेकिन अभी एनईपी आने के बाद सब कॉलेजेस में यही पैटर्न आ जाएगा। अभी इसमें पासिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी 12th स्टैंडर्ड में पासिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम कितना परसेंटेज आपको लगता है पास होने के लिए? कोई बताएगा? यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज यू रिक्वायर इन 12th स्टैंडर्ड? एनीवन? यस स्टूडेंट्स, यू कैन 35%. स्पीक। 35%, ओके, वेरी गुड। सो ये थोड़ा बार हमने एनईपी में ऊपर लाया है। 35% से अभी आप जब एनईपी में आते हो, डिग्री कॉलेज में आते हो, सो ये बार थोड़ा ऊपर लाया है 40% तक। सो अगर आपका
100 मार्क्स का पेपर है समझो, उसमें 40%, सो 40 विल बी द पासिंग। लेकिन आपका पेपर 100 मार्क्स का तो नहीं है, आपका इंटरनल इवैल्यूएशन है 40 मार्क का, सो उसका 40% आप पकड़िए, तो उसमें 16 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। सेमेस्टर एंड एग्जाम आपका 60 मार्क्स का है, उसका 40% आप वर्कआउट करोगे तो आपको मिनिमम 24 मार्क्स चाहिए उसमें पास होने के लिए। ओके, सो वैसे ही 50 मार्क का पेपर में 40% इंटरनल और 60% इंटरनल एक्सटर्नल, और उसमें भी आपको पासिंग रिक्वायरमेंट विल बी 40%। सो अगर 50 मार्क का पेपर है तो इंटर्न में 8 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे, और 30 मार्क का एक्सटर्नल पेपर रहेगा, उसमें 12 मार्क आपके पासिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे। सो ये पूरा इनिपी का पैटर्न, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैंने कैटेगरी बताया, क्या सब्जेक्ट्स इसमें हो सकते हैं ये बताया, और एग्जामिनेशन पैटर्न भी बताया, ये सब एनईपी में अभी करंट ईयर में सब कॉलेजेस में मोर और लेस सेम रहेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू योर एडमिशन प्रोसेस। अभी तक तो आपका रिजल्ट का डेट नहीं अनाउंस हुआ है। जब रिजल्ट का डेट अनाउंस हो जाएगा, आपके मार्क्स आपको पता चलेगा, आपका शायद ऑनलाइन मार्कशीट भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। सो अराउंड दैट टाइम मुंबई यूनिवर्सिटी एक नोटिस इशू करेगी, और मुंबई यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना पड़ेगा। ये आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन है मुंबई यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए ये स्टेप आपको मैंडेटरी है। सो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी पोर्टल। मुंबई यूनिवर्सिटी पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद यूनिवर्सिटी विल टेल अस आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस कभी चालू हो सकता है। सो आपको डेट्स दिए जाएंगे कि ये पीरियड में आपको एप्लीकेशन सबमिट करने हैं। उसके पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है, आपको बीकॉम को करना है या बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस को करना है या बीएमएस को करना है, वो भी आपको चूज करना पड़ेगा। और हर एक कोर्स के लिए, हर एक कॉलेज के लिए आपको अलग अलग फॉर्म मुंबई यूनिवर्सिटी पोर्टल से जनरेट करना पड़ेगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस कि ये आपको करना है। आपको कोई भी कॉलेज में जाना है तो आपको ये करना है। ओके, फिर आप कभी एफवाई बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस है, दोज आर पास 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन दे आर एलिजिबल, बट फॉर बीकॉम देयर इज अ लोअर परसेंटेज, फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस देयर इज अ हायर परसेंटेज। सो दिस विल बी एज पर द मुंबई यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। नाउ टुडे आई एम टॉकिंग टू यू एज अ इन हाउस स्टूडेंट्स। यू आर आवर ओन स्टूडेंट्स जो 12th स्टैंडर्ड में हमारे कॉलेज से ही, एसआईएस कॉलेज से ही अपीयर हुए थे। सो अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है एफवाई बीकॉम के लिए, तो आपको एक इन हाउस कोटा रहेगा। आप इन हाउस कोटा में एप्लीकेशन कर सकते हो, और सबसे पहले इन हाउस कोटा का एडमिशन होता है। यूनिवर्सिटी के जो शेड्यूल रहेगा, कैलेंडर ऑफ एडमिशन रहेगा, उसमें सबसे पहले इन हाउस कोटा रहेगा, जिसमें इन हाउस स्टूडेंट्स की एडमिशन करानी है। लेकिन ये इन हाउस कोटा सिर्फ एफवाई बीकॉम के लिए आपके काम में आएगा। अगर आपको बीएमएस में अप्लाई करना है, और इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर बीबीआई और बैप, देन दिस कोटा विल नॉट बी अवेलेबल। सो बीकॉम में सिर्फ आपको इन हाउस कोटा में एडमिशन मिल सकता है। फिर हमारे कॉलेज में और एक कोटा है, तमिल माइनॉरिटी कोटा। अगर आप इन हाउस स्टूडेंट हो तो आप इन हाउस में ही अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको तमिल माइनॉरिटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इन हाउस में अप्लाई करने का चांस है। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर स्टूडेंट्स है, या किसी को सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में अप्लाई करना है, आपने 12th स्टैंडर्ड हमारे कॉलेज से किया है, लेकिन आपको सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स जैसे बीएमएस बीबीआई में अप्लाई करना है, तो अगर आपकी मदर टंग तमिल है तो आप तमिल माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन अप्लाई कर सकते हो, और जो भी उसमें एप्लीकेशंस आएंगे उनको मेरिट के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। फिर तीसरा कैटेगरी होगा ओपन कैटेगरी। बाहर के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स है, वो भी अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाएगा। ये बीकॉम के लिए भी रहेगा और सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए भी रहेगा। सो मोस्ट ऑफ यू अवर इन हाउस स्टूडेंट्स, वी यूजुअली सजेस्ट, अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेनी है, यू गो फॉर इन हाउस कोटा, क्योंकि आपको वो एडमिशन पहले हो जाता है। कभी कभी हमारा 2-3 साल से एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इन हाउस कोटा।
और दे डोंट अप्लाई इन हाउस कोटा। अगर आप वो गलती करोगे और बाद में सीट भर गए या मेरिट में आपका नाम नहीं आया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन बीकॉम, देन आवर सजेशन इज एज फार एज पॉसिबल थिंक ऑफ अप्लाइंग इन हाउस कोटा। देन आप कोटा चुन लिया, यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया, आपका ये सब प्रोसेस हुआ, फिर आपको जो डेट्स दिए हैं वो डेट में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं। मोस्टली ये ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। जैसे आपका एडमिशन के डेट्स आएंगे हम आपको नोटिस निकाल के उसकी जानकारी दे देंगे, बट ये सब मोर और लेस ऑनलाइन प्रोसेस होगा। उसके बाद रिस्पेक्टिव डेट्स पे मेरिट लिस्ट आएंगे। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको 2 या 3 दिन दिए जाते हैं पेमेंट करने के लिए। सो तभी आपको ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह सब डिपॉजिट करना है और आपको पेमेंट ऑफ फीस भी करना है। जब पेमेंट ऑफ फीस हो जाएगा तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। मोस्ट लाइकली पेमेंट ऑफ फीस ऑल्सो विल बी ऑनलाइन, बट लेट अस वेट, विल वेट फॉर द नोटिस, विल वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन ये सब प्रोसेस है आजकल हमारे पोर्टल पे ही होता है। बट हम आपको इसकी जानकारी जब देंगे जब आपके एडमिशन का कैलेंडर और बाकी सब डिटेल्स आ जाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है एडमिशन प्रोसेस में? यस, एडमिशन प्रोसेस में किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है? यू कैन आस्क मी नाउ। यस, नथिंग? ओके, सो आई विल प्रोसीड। ओके, अभी हम लोग देखेंगे आपके सेमिस्टर 1 बीकॉम अगर आप चूज कर रहे हो तो आपके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया एनईपी में अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्रेडिट्स रहेंगे। सो अगर आप फर्स्ट ईयर बीकॉम की बात कर रहे हो तो आपका एक अकाउंट्स का पेपर होता है जिसे हम मेजर कैटेगरी करते हैं, उसका 3 क्रेडिट रहेगा। एक कॉमर्स का पेपर रहेगा जो भी मेजर कैटेगरी में आएगा, 3 क्रेडिट का रहेगा। फिर आपके बिजनेस कम्युनिकेशन यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक पेपर रहेगा। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म ये एक पेपर होगा आपका। आइदर मैथ्स और स्टैट्स और इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपका इलेक्टिव पेपर रहेगा। फिर आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर होगा। एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन ये और एक पेपर होगा। और हेल्थ एंड वेलनेस जो मैंने आपको बताया आपकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो एक पेपर होगा। अब इसमें देखिए मैंने क्रेडिट यहाँ पे लिखे हैं। सो अगर 3 या 4 क्रेडिट का पेपर रहेगा सो वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। सो अकाउंट्स का पेपर 100 का रहेगा, कॉमर्स का 100 का रहेगा, मैथ्स का 100 का रहेगा। बाकी सब पेपर्स 50-50 मार्क्स के रहेंगे। और 50 मार्क्स में 20 मार्क्स इंटरनल, 30 मार्क्स एक्सटर्नल, 100 मार्क्स में 60 मार्क्स एक्सटर्नल, 40 मार्क्स इंटरनल। ये आपका ओवरऑल पैटर्न रहेगा सेमिस्टर 1 के लिए। अब यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट्स फॉर सेमिस्टर 1? किसी को कुछ पूछना है सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स में? ओके, सेमेस्टर 2 में आपके सब्जेक्ट मोर और लेस वही रहेंगे, खाली एक ही चेंज है। पहले सेमेस्टर में आपको इकोनॉमिक्स नहीं था, आईकेएस था। उसके बदले में अभी यहाँ पे एक माइनर सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो सेकंड सेमेस्टर से आपका इकोनॉमिक्स का स्टडी वापस चालू हो जाएगा। जो आप 12th स्टैंडर्ड तक किए हो उसका एडवांस लेवल आपको सेकंड सेमेस्टर से आ जाएगा। बाकी सब पेपर्स जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है वैसे ही आपके पेपर सेकंड सेमेस्टर में है। सिलेबस अलग रहेगा, थोड़ा लेवल अलग रहेगा, बट टाइटल ऑफ द पेपर, सब्जेक्ट के नाम वही रहेंगे एक्सेप्ट एक बिजनेस इकोनॉमिक्स जो नया पेपर सेमेस्टर 2 से आपको आपके सिलेबस में ऐड हो रहा है। अभी ये एनईपी की और एक खासियत है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने फर्स्ट ईयर बीकॉम किया। फर्स्ट ईयर बीकॉम में आपका पूरा सिलेबस कॉमन रहेगा और सेकंड ईयर बीकॉम से आपका स्पेशलाइजेशन चालू हो जाएगा। ये स्पेशलाइजेशन क्या है? आपको डिसाइड करना है कि आपकी डिग्री आपको अकाउंटेंसी में चाहिए या कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में चाहिए। ये आपको चॉइस कभी करना है जब आप फर्स्ट ईयर पास हो जाओगे। तो अगर आपको अकाउंटेंसी में डिग्री लेनी है तो आपके सब्जेक्ट्स अलग रहेंगे, और अगर कॉमर्स और मैनेजमेंट में डिग्री लेनी है
तो आपके सब्जेक्ट्स अलग रहेंगे। इसमें कोई सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन की जो सब्जेक्ट्स है, दोज आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर मेजर इन अकाउंटेंसी एंड मेजर इन कॉमर्स। लेकिन ये चॉइस आपको अभी नहीं करना है, बट फिर भी वी आर ट्राइंग टू टेल यू दैट दीज आर योर ऑप्शंस आफ्टर फर्स्ट ईयर बीकॉम। सो यू शुड नो नाउ कि आपका सब्जेक्ट का लाइकिंग क्या है, what are you planning to do after BCom? Are you doing professional accountants course like CA, CMA, or are you planning for any other thing like MBA in marketing, etc.? That will decide which specialization you will do. So ये आपको parents के साथ discuss करना है. You will have to find out what are your strengths. You will have to find out what is your liking, which papers you can do better, and ultimately what is your career path ahead. If you know that, then it will be easier for you to decide either major in accountancy or major in commerce and management after FYBCom. Okay. Now I'll just show you quickly what are the subjects in semester 3. अगर आप अकाउंटेंसी में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो आपके 2 मेजर पेपर अकाउंट्स के रहेंगे, उसके साथ आपको बाकी के पेपर रहेंगे जैसे साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, लॉ है, एक लैंग्वेज रहेगा और योगा या सिमिलर टाइप का पेपर आपका इसमें रहेगा। ये सब 2-2 क्रेडिट वाले छोटे आपको स्टडी करने हैं अंडर एनईपी। और अगर सेम 4 की बात करें, अगर आप अकाउंटेंसी मेजर करते हो, सो सिमिलर टाइप ऑफ पेपर्स विल बी देयर। 2 मेजर अकाउंट्स के पेपर रहेंगे 4-4 क्रेडिट वाले, और बाकी के पेपर है वो कॉमन रहेंगे। आप कॉमर्स में मेजर करो या अकाउंट्स में मेजर करो, ये बाकी के पेपर मोर और लेस कॉमन है। सिर्फ मेजर पेपर कहाँ पे, फर्स्ट 2 पेपर्स जो है वो आपके स्पेशलाइजेशन के पेपर्स है। अगर आप कॉमर्स में प्लानिंग कर रहे हो आपका स्पेशलाइजेशन, तो आपके पहले जो 2 पेपर्स है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग, दीज आर योर स्पेशलाइजेशन पेपर। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल बी सेम एज योर अकाउंटेंसी ग्रुप, उसमें कोई चेंज नहीं है। सेम 4 में भी वैसा ही रहेगा। फर्स्ट 2 पेपर्स आर योर कोर पेपर्स, स्पेशलाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। रिमेनिंग पेपर्स आर कॉमन विथ ऑल अदर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मेजर इन अकाउंटेंसी। ये हमने आपको अभी बताने का रीजन ये है कि आपको अभी थोड़ा सोचना है इसके बारे में कि फर्स्ट ईयर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपका प्लान क्या है, उसके हिसाब से आपको ये स्पेशलाइजेशन करना है। लेकिन ये अभी टाइम है इसके लिए। आफ्टर फर्स्ट ईयर यू विल कम टू नो व्हाट इज योर लाइकिंग, वेयर यू वांट टू गो, देन यू कैन मेक अ डिसीजन एंड जॉइन आइदर अकाउंटेंसी और कॉमर्स स्पेशलाइजेशन। Now here are some general points. Okay, you have to make the choice of major specialization. ये choice कभी करना है, फर्स्ट ईयर के बाद करना है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो चॉइस अप्लाई किया है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है और ज्यादा स्टूडेंट्स ने उसके लिए अप्लाई किया है, तो कॉलेज फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट अलॉट कर सकता है। आप अगर SY बीकॉम में फर्स्ट ईयर के बाद एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम 36 क्रेडिट्स होने चाहिए, सेम 1 और सेम 2 मिला के आपके मिनिमम 36 क्रेडिट्स है, तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ये थोड़ा सा अलग सिस्टम है ATKT का। आपने आपके सीनियर से सुना होगा, डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स से सुना होगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीकॉम में कुछ अलाउड टू कीप टर्म्स और दे कॉल इट एज ATKT होता है। अगर ATKT के रूल के हिसाब से अगले साल आप एडमिशन भी ले सकते हो, लेकिन अंडर NEP दिस ATKT रूल्स आर डिफरेंट नाउ, so it goes with the credits. So if you have 36 credits, then you will be able to take admission in second year. College is strict about attendance, so 75% attendance is expected from you. And one more thing, whenever you go to TY after second year BCom, if you want to make a choice of subjects, then that will also be based on your performance and attendance. So all the time, you have to be very, very careful about your studies. We suggest you focus on your studies and then you participate in whatever extracurricular, co-curricular activities you want to participate. But study should be your primary focus, but we also recommend you should take participation in other activities of the college as well. Then under NEP, you can earn extra credits, and for that we have several short-term courses and certificate courses.
You will get more information on this when you will get admission in F5 BCom, and then that time you will again have orientation before you start your first year BCom or first year self-financing course. That time we'll tell you more on these things, like what are the certificate courses we have, what are the short-term courses we have, and what kind of benefit it will give you. Then we have different activities in the college. There is a department of life learning education. There is a national service scheme, NSS, NCC, most of you would have known, sports hai, cultural hai. If you participate in this, and if you reach a particular level of, or if you fulfill certain conditions, you get 10 extra marks in addition to what is your score in the examination. And these activities will also help you to shape up your career. So we recommend first year BCom onwards, you can start participating in these activities. Now under NEP, you must have heard that some colleges will have 4-year degree, some colleges have 3-year degree. It is nothing of that sort. It is same. If you do 3 years of BCom, we can give you a degree as a graduate BCom, which could be either majoring in accountancy और मेजरिंग इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. आप सेकंड ईयर से जो भी सब्जेक्ट लोगे सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपका डिग्री आइदर अकाउंटेंसी में रहेगा या कॉमर्स और मैनेजमेंट में रहेगा. फोर्थ ईयर आपके पास ऑप्शन है. आफ्टर थर्ड ईयर बीकॉम, इफ यू वांट, you can go ahead with one more year of undergraduate program, and we call it as a degree or honors program. इसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो 1 ही साल आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. So after third year BCom or third year course, you can decide whether you want to do fourth year or whether you want to leave the education right now for that particular moment and then join later for the fourth year. That option is also open. Okay, so this is all I'm telling you how the NEP things have been structured over a period of time. Okay, so these are few things about the general instructions. I will also give you a list of self-finance courses programs in our college. We have Bachelor of Management Studies. We have BCom Banking Insurance, BCom it's Accounting and Finance. I'm sorry, there is a typo error. It's not B and F, it is A and F, Accounting and Finance. Then there is a BCom Financial Markets. We have one BCom International Accounting, where this course is what I would say is have some papers which are related, which are covering ACCA, which is the international qualification. And then you have BSc IT. Now, I'm not going to discuss in detail about these courses. Some of you would be knowing, you might have spoken with your friends also, but my colleagues, other professors who are part of these courses, they will take a special online session with you, and then they will tell you BMS, what are the subjects, what are the courses options available in BMS, BBI में क्या options available है, financial markets में क्या options available है. So all that will be taken care of when you join that particular presentation. Okay, so for the time being from my side, I am through with my presentation. Now we can stay back for any questions or whatever doubts you have. Okay, so I'll close this presentation file and you can ask me any questions if you have. Yes, any questions? You can unmute and ask me the question. Yes, any questions? So everybody seems to have got full information about FY BCom, other options and everything, right? So no questions about NEP, about anything else? No, sir. If there are no, yeah, somebody's saying something, somebody's asking. No, sir, we got it. So can we Fine. get SIT admission in our quota? You're asking something. Can you be a bit louder? You're asking Atif? something. Hello, Atif. Want to ask something?
You are asking something, Atif? Sir, can we get admission in BSc IT in house quota? Your voice is not very clear. Be loud. Okay. So I think with that, we'll stop for the moment. I thank your Vice Principal, Chitra Madam. I also thank Dr. Neena Madam, our Principal. And I also thank all of you for attending this session. What we have done is we have recorded this session, and in next few minutes, I will upload this video on college YouTube channel. We have a college YouTube channel for your information. So we'll upload this particular video. So in case you want to again see what was discussed, you want to again recap what was discussed, you can always go back and see the video. You can share that link with your friends also, either from our college or other colleges who want to seek admission, because they will get basic idea about what kind of courses, what kind of subjects, what kind of combinations we offer, and what is the process of admission. So before we end, I'll request Chitra Madam if she wants to say a few things, and then we'll close the session. Chitra Madam. Thank you so much, sir, for the information. If anything is said, I'll definitely send to the CR groups. And if Sure. they ask anything, I'll ask you. Sure. Sure. Okay, Sure, sir. madam. Thank you Thank you so so much. much, sir. Thank you all. Thank Thank you. you. Thank you. They can leave, then, sir. Yeah, they can do. You can leave now. Yes, yes, yes. You can leave now.